So a very good evening to everyone. Hope all of you well. And before starting this session, a happy Janmashtami to all of you. And I will pray to Lord Krishna for all of your success in the upcoming examination. So friends, as all of you know that today's session is going to be one of the important session. As you all know that every year they are asking one or two questions both in prelims and mains. Mains में भी यहाँ से question आते हैं, right? So in prelims and mains both they are asking question from this topic that is related to plant nutrient deficiency. तो बेसिकली जब आप देखोगे when you look into the syllabus you don't find any area called plant nutrient deficiency, but even though they are asking question again and again every year, right? तो क्यों भी एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं और हमें कैसे तैयारी करनी है, राइट? बिकॉज इफ विल गो इनटू द डिटेल ऑफ दिस प्लांट न्यूट्रिएंट्स, देयर deficiency symptoms and what are their functions, it will be unending process, वो कभी end नहीं होगा and बहुत सारी चीजें जो है overlapping है, right? So it creates a confusion. So we should limit our study, right, to some of the certain things only, which important keywords है that you should always remember and that will only help you in the examination. So we will practice somewhat 40 questions today, somewhat 40 questions we will be practicing today, and you hope that most of the questions if comes in the examination it will be from this 40 questions only. So it is better to understand this 40 questions plus whatever the extra points I will tell you that you take into consideration, and जो keywords आएंगे साथ ही साथ whatever the keywords are there उन keywords को थोड़ा आपको जहन में रखना है, that will only help you to get good marks in the examination. So we'll start with this session, but before that what I was saying that क्यों ये topic पढ़ना है, why you need to study this topic though it is not mentioned in the syllabus. तो दो sources है जहां से questions आते हैं. Questions come from two sources. First is your from the soil fertility part. Soil fertility part. ठीक है, यहां से कुछ क्वेश्चंस आते हैं and those questions are related to identification of nutrient. ठीक है, उनके functions आपको identify करना है. And next is related to their use and their deficiency, what leads to certain symptoms. ठीक है, कुछ symptoms आते हैं वहां से आपको identify करना है. So both areas are leading to identification of the nutrients, identification through their usage and identification through their deficiency symptoms. ठीक है, तो दोनों areas को हम cover करेंगे. Our today's MCQ will be restricted. Question number 1 to 25 will be related to deficiency symptoms, ये वाले part से, and 25 to later on 38, 40 जितने भी questions होंगे that will be related to their usage and identification. ठीक है, इस तरह से हम प्रोसीड करेंगे आज के सेशन में. सो बिफोर गोइंग ऑन टू दैट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट कुछ कंसेप्ट्स हमें पढ़ लेने हैं ध्यान से. दोस कंसेप्ट विल बी इंपॉर्टेंट एंड डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चंस आप लोगों को जैसे आपने दिया होगा पहले एग्जामिनेशन, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से भी आते हैं, राइट? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स. क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स आपको देख लेने कौन कौन से होते हैं, जो कि already I have provided in the master notes, but today I will discuss so that you people are able to recall and retain the things, because इसमें गलती कर देते हैं हम, right? तो plant nutrient की जब हम बात करते हैं तो basically it can be classified into three categories as all of you know. The first category is macro, right? पहला category जो है वो macro का category है. The next is your micro category and last is your beneficial category. So what is the basic difference if somebody can tell me what is the difference between macro and micro? कैसे हम differentiate करते हैं? It is a macronutrient or a micronutrient. Somebody will comment in the chat box. How do you differentiate between a macro and a micronutrient? Is there any basis for classification? कोई एक basis है? Amount and quantity, very good quantity. So what is that benchmark quantity? So what is that benchmark quantity to classify? देखिए बेंचमार्क क्वांटिटी है, इट इज 10 मिलीमोल है, ये बेंचमार्क क्वांटिटी है आपका. ठीक है, 10 मिलीमोल इज द बेंचमार्क क्वांटिटी. अगर इससे कम होता है तो इट इज माइक्रो, अगर इससे ज्यादा होता है देन इट इज कॉल्ड एज मैक्रो. ठीक है, 10 मिलीमोल का क्वांटिटी आप याद रखेंगे.
ये आपके इफ यू गो थ्रू द एनसीईआरटी बुक्स एंड ऑल, दिस इज द स्टैंडर्ड क्वांटिटी दे हैव मेंशन्ड ओवर देयर, ठीक है। टीएनएयू के अगर आप प्रॉपर्ली पढ़िएगा तो ये यही है स्टैंडर्ड बेंचमार्क, दैट इज 10 मिलीमोल। तो दिस इज द बेसिस फॉर क्लासिफाइंग दी, तो इसको भी याद रखना है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है दैट व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट करके दे देंगे और आपको वहां से क्लासिफिकेशन पूछ लिया जाएगा कि कौन सा स्टैंडर्ड बेंचमार्क है, तो 10 मिलीमोल का आपको याद रखना है। Now coming on to the first classification, that is more than 10 millimoles if it is requirement, we call it as macronutrient. तो आपको याद रखना है, it is very easy. Code is there. What is the code? Code is there. PK का कौन सा मग? PK का कौन सा मग? Right? Very easy. PK का कौन? CHON कौन सा and mug. You can see PK. राइट, ठीक है, का दैट इज कैल्शियम, पोटेशियम, ठीक है, फॉस्फोरस, CHON कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, S फॉर सल्फर एंड Mg फॉर मैग्नीशियम। तो ये आपको एग्जामिनेशन में आप ताकि गलती ना करो वहां स्ट्रेस सिचुएशन में, तो इस कोड को आप याद रख सकते हो। ऐसे हो सकता है मिक्सअप हो जाए वहां पे, ऐसे हो सकता है यू नो, बट व्हेन द क्वेश्चन कम्स इन द एग्जामिनेशन यू मे गेट मिक्स्ड अप। तो उस चीज से बचने के लिए आप इस छोटे से कोड को याद रख सकते हो, पीके का कौन सा मग, राइट। देन व्हेन कमिंग टू द माइक्रोन्यूट्रिएंट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप याद रख सकते हो मोबाइल चार्जर। व्हाट इज दिस मोबाइल चार्जर? MO मोलिबेडनम, B फॉर बोरोन एंड C फॉर क्लोरीन। फर्स्ट थ्री आपको याद हो गया मोबाइल चार्जर से। एंड द लास्ट आप याद रख सकते हैं फेकू मंजन, सिंपल फेकू मंजन, iron, copper, manganese and zinc. Though if some student is from biology background, he or she might be knowing, but अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, आर्ट्स से, कॉमर्स से, तो आपके लिए ये चीजें नहीं हो सकती है, तो आप इस हिसाब से चीजों को याद रख सकते हैं। फेकू मंजन मोबाइल चार्जर एंड हियर इट इज व्हाट, पीके का कौन सा मग। इन दोनों को छोड़ के जो भी बचेंगे वो बेनिफिशियल कैटेगरी में आपके आते हैं। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स बट यू मस्ट रिमेंबर, ठीक है। अब हम अगर हम आगे देखते हैं इन कैटेगराइजेशंस में से क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, आप देखोगे तो नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट्स हम किनको बोलते हैं वो आपको देखना। व्हाट आर नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट्स? 4 + 5 + 6। यहाँ पे आप देख लो पीके का कौन सा मग से आपको 1 2 से 9 तक आप बैठा लो नंबर। 456 ईयर नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो आपको पहले से पता होगा, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। स्ट्रक्चरल की बात करें दैट इज 4 + 5 + 6 जो ऊपर था +7 आप ऐड कर दो, that is नाइट्रोजन को ऐड कर देते हैं। Why these are called structural? Why these are called structural? Because they form the structure of the biomolecules. ठीक है, इसीलिए इन्हें स्ट्रक्चरल बोला जाता था। नेक्स्ट बेनिफिशियल की जब बात करें तो मैक्रो एंड माइक्रो को छोड़ के जो न्यूट्रिएंट्स बच जाते हैं दैट इज कॉल्ड बेनिफिशियल, ठीक है। ये सेलेनियम है, सेलेनियम है, तो इसको आप याद रख सकते हो को ना सी से, राइट। कोबाल्ट, सोडियम, सिलिकॉन, सेलेनियम, ये हो गया आपके, एंड वेनेडियम, ये भी आप याद रख सकते हैं। ये हो गया बेनिफिशियल। प्राइमरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनपीके को हम प्राइमरी बोलते हैं, प्लस सेकेंडरी किसको बोलते हैं? 398 को हम सेकेंडरी बोलते हैं। दैट इज योर 3 में कैल्शियम, N में मैग्नीशियम एंड ये सल्फर, ये दोनों क्या हो जाते हैं? Ca, Mg एंड S इज योर, इट इज सेकेंडरी। तो हर एक एरिया से क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं और फिर से पूछे जा सकते हैं। आपसे माइक्रो मैक्रो पूछ दिया जाए, आपसे बेनिफिशियल पूछ दिया जाए, मे बी दे कैन आस्क प्राइमरी फ्रॉम यू, मे बी दे कैन आस्क सेकेंडरी फ्रॉम यू, दे कैन आस्क स्ट्रक्चरल फ्रॉम यू, दे कैन आस्क नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट फ्रॉम यू। सो दीज आर सम ऑफ द एरियाज फ्रॉम वेयर दे आर जनरली आस्किंग द क्वेश्चंस, ठीक है। ओके फाइन। वन मोर थिंग इज देयर, एनर्जी रिलेटेड कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स है ये भी आपको याद रखना है। एनर्जी रिलेटेड कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स है ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। एनर्जी रिलेटेड P प्लस आपको याद रखना है Mg, ये दोनों Mg रिलेटेड एनर्जी रिलेटेड है। और केमिकल से, केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड बहुत ही है, बट 2 आर इंपॉर्टेंट, दैट इज Mg2+ और MO आपको याद रखना है। Mg2+ इज रिलेटेड टू कार्बन फिक्सेशन, टेक्निकल टर्म, एंड मोलिबेडनम इज रिलेटेड टू नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए दिस आर आई एम डिस्कसिंग। तो ये कुछ रेस्ट्रिक्टेड एरियाज है, ठीक है, जिसको मैंने सम अप कर दिया है। एंड यू ऑल मस्ट रिमेंबर
macro, micro, beneficial, and rest of all the classification. So I think this is clear to you. If you can comment in the comment box, is it okay? Is the classification clear to you? Yes. So इसको मत भूलना, यहाँ से एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, यहाँ से एक क्वेश्चन देंगे एंड वन क्वेश्चन दे विल गिव फ्रॉम द डेफिशिएंसी वाले पार्ट से। तो ये एक ओवरऑल व्यू है, इसको आप जरूर से याद रखिएगा, राइट। चलिए इससे पहले मैं कि आगे बढ़ूं, और एक चीज मुझे याद आ रहा है, who has given the criteria for classification? Who has given the criteria for classification? Yes, Shubhsmita is saying Arnan and Stout, very good. Arnan and Stout का नाम भी आप याद रखो, Arnan and Stout का भी नाम आपको याद रखना है, Arnan plus Stout। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, मैक्रो, माइक्रो, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या है, नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या है, तो ये आर्नन एंड स्टाउट ने ही दिए है इस क्लासिफिकेशन को। इसमें इन्होंने हाउ मेनी न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल एज पर आर्नन एंड स्टाउट, आर्नन एंड स्टाउट के हिसाब से हाउ मेनी न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल, तो आर्नन स्टाउट के हिसाब से एज शिबू सेड इट 16, 17 को हमने बाद में जोड़ा है, आर्नन स्टाउट ने 16 बोला था, ये भी आप याद रखेंगे। और उन्होंने 3 क्राइटेरिया दिए थे एसेंशियल बताने के लिए। व्हाट? ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए, इसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते, और ये एसेंशियल है मेटाबॉलिज्म के लिए। 3 क्राइटेरिया दे हैव गिवन, राइट, बाय आर्नन एंड स्टाउट। तो ये बेसिक फ्रेमवर्क है। तो इसको जब हम सम अप करेंगे, जो हमने अभी देखा, तो आप इसको यहाँ से देख सकते हो, निकल को कोई इधर कंसिडर करता है, कोई इधर कंसिडर करता है, तो आप इधर ही कंसिडर करके चलो इसको, निकल को, ठीक है, यू कंसिडर इनटू दिस साइड ऑनली। तो ये सारे क्लासिफिकेशंस हो गए। देखो मैक्रो में कितने हो गए आपके, ऑल दीज आर मैक्रो, यहां से यहां तक मैक्रो है, CHO, NPK, CA, MGS 3 + 3 6 + 3 9, ठीक है। यहाँ अगर देखोगे माइक्रो पे अगर आ जाओ, निकल को इधर हम इंक्लूड कर देते हैं, तो 3 + 3 6, कॉपर 7 एंड निकल इज 8। तो ये सारे हो गए माइक्रो। एंड बेनिफिशियल हो गए कौन कौन से, ये सारे बेनिफिशियल हो गए, ठीक है, NaCO, Va, ये बेनिफिशियल हो गए जैसे हमने अभी डिस्कस किया। इस ब्रॉड क्लासिफिकेशन को यू मस्ट रिमेंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप डिफिशियंसी सिम्टम पढ़ोगे या फिर डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। वेरी मोबाइल, मॉडरेटली मोबाइल एंड इमोबाइल, व्हाट आर दी डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। तो 2 को याद रखना है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इमोबाइल से। ऑल ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट ओला एंड उबर। What they provide? कैप देते हैं, तो कैप से क्या आ गया, कैल्शियम एंड बोरोन। सो Ca and B comes to your immobile, जो कि हिलते नहीं है एक जगह से दूसरी जगह में। नेक्स्ट आपको इस कैटेगरी को याद रखना, जो बहुत ही इजी है, N, P, K और Mg। बाकी जो बच गए वो मॉडरेट वाले में आ जाते हैं। तो इस एक्सट्रीम को याद रखना है आपको, इस एक्सट्रीम को याद रखना है, तो बीच वाला आपको ऐसे ही याद रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो कंडीशन आपको याद रखना है, जितने भी मोबाइल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दे शो देयर सिम्टम फर्स्ट इन दी ओल्डर लीव्स, ठीक है। ये ओल्डर लीव्स हो गए, ये यंगर लीव्स हो गए। तो मोबाइल जितने भी एलिमेंट्स होंगे, दैट मीन्स योर N या P, K या Mg के जो सिम्टम्स आएंगे, दे ऑलवेज कम्स इन दी ओल्डर लीव्स, ठीक है, ये आपको याद रखना है यहाँ पे। और जो इमोबाइल के होंगे वो यंगर में आएंगे, ये आपको याद रखना है। दिस 2 क्राइटेरिया। ये हमने अब देखा क्लासिफिकेशन एज पर मूवमेंट इन द प्लांट, प्लांट के बॉडी में जो मूवमेंट हो रहा है न्यूट्रिएंट्स का। बट अगर हम सॉइल की बात करें, सॉइल में हाउ दे मूव, तो उसको भी आपको याद रखना है कि सॉइल में वेरी मोबाइल कौन कौन से होते हैं। तो नाइट्रेट, सल्फेट, सल्फर एंड बोरोन, ये तीनों एटलीस्ट याद रखिए। इधर याद ना रखो, इधर याद ना रखो, नॉट जरूरी नहीं है, बट यू मस्ट रिमेंबर नाइट्रेट नाइट्रोजन, सल्फेट सल्फर एंड बोरोन आर वेरी मच मोबाइल इन सॉइल। ये क्लासिफिकेशन भी आपको याद रखना है। ये कंसेप्ट है, जो पहला कंसेप्ट हमने डिस्कस किया, दिस इज द सेकंड कंसेप्ट। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द थर्ड कंसेप्ट। इसमें बस आपको पूरा इतना याद नहीं रखना है, बिकॉज दिस पार्ट्स विल नॉट हेल्प मच इन सॉल्विंग द MCQs। यहाँ से जनरली क्वेश्चन आते भी नहीं है, बस इतना सा पार्ट आप याद रख सकते हैं इस चार्ट में, ठीक है। मोस्टली मोबाइल N, P, K, Mg हो गया। तो इफेक्ट जब भी थ्रू आउट द बॉडी होगा ऑफ द प्लांट, तो यहाँ पे नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस होगा। If it is not, then आप यहाँ पे मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड जिंक ले सकते हैं, ठीक है। तो सिम्टम्स इन ओल्ड लीफ, ठीक है, मैंने बताया ओल्ड लीफ में किससे होगा, मोबाइल से होगा। मोबाइल का क्लासिफिकेशन हमने देख लिया, कौन कौन से मोबाइल में आ रहा है।
तो NPK, Mg और जिंक है। तो यहाँ से आप देख लेना, जो यहाँ पे क्रॉस कर दिया गया है N और P जो बच रहा है, दैट विल अफेक्ट द ओवरऑल प्लांट, बट K, Mg एंड Zn विल नॉट अफेक्ट द ओवरऑल प्लांट। ये आपको ध्यान देना। इसी तरह से Ca, B जो कैप वाला पार्ट है जो भी हमने देखा, ये जब भी डिफिशियंट होगा तो टर्मिनल बड डाइज, ठीक है। और जब ये डिफिशियंट होंगे, दैट इज Mn, Fe और S इज डिफिशियंट, देन टर्मिनल बड विल बी अलाइव। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट एक क्लासिफिकेशन है, जहां से मैंने ये लाइन डाल दिया, बस इतना ही आप याद रखो। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो आएंगे वो क्वेश्चन के साथ आएंगे। ये जो डिफरेंट क्वांटिटीज है, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द जनरलिस्ट पीपल। मेंस में लैंड डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर पीपल, इसके रेंज को थोड़ा देख लेना, एक एक पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा रेंज आप देख लेना। दे कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम हियर, इस रेंज को आप थोड़ा सा देख लेना स्पेशलिस्ट पीपल। अब हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। छोटे छोटे हमने कुछ कंसेप्ट देख लिए हैं, ठीक है, और भी कंसेप्ट हम देखेंगे विद क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस आप सॉल्व करना स्टार्ट कीजिएगा तो मजा आएगा फिर, ठीक है। नाउ लाइट ग्रीन एरियाज, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट लाइट ग्रीन एरियाज। चलो एक सेकंड, चलो। सो इट इज सेइंग दैट लाइट ग्रीन लीफ, ठीक है, लाइट ग्रीन लीफ एंड प्लांट कलर विथ ओल्डर लीफ टर्निंग येलो। एक एक पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना, हमें एक्चुअली यहाँ पे समझना है चीजों को। तो लाइट ग्रीन लीफ विथ प्लांट कलर, एवरीबॉडी इज गिविंग नाइट्रोजन आंसर। ओल्डर लीफ की बात हो रही है, ये की पॉइंट है यहाँ पे। येलो टर्न हो रहा है, येलो के बाद ब्राउन एंड डाई हो रहा है, ठीक है। प्लांट ग्रोथ इज स्लो एंड स्टंटेड एंड विल मैच्योर अर्ली, इट इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। तो अभी हमने देखा था कि जस्ट कोई भी होगा, ओल्डर लीफ पे कौन कौन से इफेक्ट कर रहे हैं हमें पता है, NPK, Mg, Zn है, तो उन्हीं में से कोई होगा। तो ये जो है Ca, Na, तो आप ऐसे ही सॉर्ट इट आउट कर दो कि ये होगा नहीं। ऑप्शन आपके पास दो ही बचते हैं, N और P, ठीक है। तो हियर इट इज सेइंग दैट ओल्डर लीव्स टर्निंग येलो, ओल्डर लीव्स। तो अब थोड़ा समझ लो क्यों ये येलो टर्न कर रहा है। नाइट्रोजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल ओनली गिव्स द प्लांट ग्रीन कलर। तो जब नाइट्रोजन की कमी है, when nitrogen is less, then chlorophyll formation will not take place. When chlorophyll formation will not take place, then the leaves will turn yellow. अब येलो होने के बाद थोड़ा भी नहीं बचेगा नाइट्रोजन, then it will ultimately turn brown. So this is what question is saying, green to yellow, yellow to brown, ये हो रहा आपका, ठीक है। And while the plant will be stunted, because you know that chlorophyll के बिना फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, एंड फोटोसिंथेसिस ओनली मैन्युफैक्चर्स द फूड। द फूड इज नॉट अवेलेबल टू द प्लांट, द ग्रोथ विल बी स्टंटेड। तो ये एक ओवरऑल ब्रीफ था, जो नाइट्रोजन कैसे काम करता है हमने देखा। तो राइट आंसर फॉर दिस विल बी योर नाइट्रोजन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है टेक्निकल टर्म्स एग्जामिनेशन में, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है। पुअर टेलरिंग, जैसा कि हमने बताया, ग्रोथ नहीं हो पाता है, और कैसे कैसे ये कलर चेंजेस हो रहे हैं, ये आपको टेक्निकल टर्म्स यहाँ पे थोड़े से याद रखने हैं, ठीक है। नाइट्रोजन वाला इट विल बी इजी टू आइडेंटिफाई, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, जहां पे डिफिकल्टीज आएंगे, धीरे धीरे डिफिकल्ट होंगे क्वेश्चन, वो हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। प्लांट ग्रोथ विल बी स्लो एंड स्टंटेड एंड द ओल्डर लीव्स विल बी हैविंग अ पर्पल कलरेशन। देखो, स्लो एंड स्टंटेड ये नाइट्रोजन में भी था, स्लो एंड स्टंटेड नाइट्रोजन में भी था, ओल्डर लीव नाइट्रोजन में भी था, बट here we are adding one more thing, that is purple coloration. So the key word here for identifying the nutrient is your purple. P for purple, P for phosphorus. तो जहां भी आपको वर्ड पर्पल दिख जाए, you go for what? Phosphorus. So phosphorus will be the right answer for this question due to purple correlation. अगर ये पर्पल नहीं होता तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते यहाँ पे कि कौन सा न्यूट्रिएंट है। नाइट्रोजन भी हो सकता था, फॉस्फोरस भी हो सकता था, इट कैन बी एनीथिंग। सो व्हेनेवर द एग्जामिनर विल आस्क सच अ क्वेश्चन फ्रॉम यू, देन जो भी इंडिकेशन होगा दैट विल बी क्लियर, वहां पे एम्बिगियस नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आप टेंशन फ्री रहना, एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन आएगा दैट विल बी वेरी क्लियर एंड यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई इफ यू नो द सम ऑफ द की टर्मिनोलॉजीज, किससे किसको कैसे एसोसिएट करना है, ठीक है। ये है phosphorus के लिए आइडेंटिफाइंग स्लो एंड स्टंटेड प्लस पर्पल कलरेशन, व्हाट यू आर सीइंग इन द इमेज हियर, ठीक है। ये है phosphorus से रिलेटेड।
Now coming on to the next question, यहाँ पे देखो again older leaves. On the older leaves, the edges will look burned, a symptom known as scorch. This is the keyword here. Plants will easily lodge. Lodging is again a keyword here. And it is sensitive to disease infestation. Again a keyword. Fruit, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना. Fruit and seed production will be impaired and poor quality is due to deficiency of. तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 keywords है. What? Scorch, lodging problem, infestation problem, and poor quality of fruits and seeds. So Sachin is saying calcium, Nikita is saying calcium, Anshu is saying potassium. तो देखो यही हमें गलती नहीं करना है. So जो keywords हमने अभी डिस्कस किए, these are all related to what? Potassium. तो right answer will be potassium. अब देखो यहाँ पे पोटेशियम को आप स्लीप वर्ड से याद रख सकते हैं. स्लीप इज द करेक्ट वर्ड फॉर आइडेंटिफाइंग द पोटेशियम. एस से स्कॉर्चिंग, एल से लॉजिंग, आई से इन्फेस्टेशन दैट इज डिजीज इन्फेस्टेशन, एंड पी से पुअर क्वालिटी ऑफ सीड एंड फ्रूट. तो ये है पोटेशियम से रिलेटेड. मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आइडेंटिफाइंग द पोटेशियम इज योर स्कॉर्चिंग एंड बर्निंग सिम्टम. ठीक है, लॉजिंग भी इंपॉर्टेंट है एंड डिजीज इन्फेस्टेशन भी इंपॉर्टेंट है. तो जहां भी आपको ये टर्म्स दिख जाए तो यू गो फॉर द पोटेशियम. ठीक है, तो पोटेशियम को स्लिप्स आप कंबाइन कर ले. राइट. सो द 3 मेजर जो भी हमारे पास है दैट इज N प्लस P प्लस K. इन तीनों को हमने देख लिया. क्वेश्चन अगर आते हैं तो इन्हीं में से पूछे जाएंगे. NP के डेफिशिएंसी से अगर पूछे जाते हैं क्वेश्चन. यूजेज वाला पार्ट अभी बाद में आएगा आफ्टर क्वेश्चन नंबर 25. राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. The growing tips of roots and leaves will turn brown and die. Very important. Growing tips किसके बात कर रहे हैं? Roots and leaves की growing tip के बारे में बात हो रही है. The edges will look ragged. Ragged means torn out. ठीक है. And leaves stick together. Fruit quality will also be affected and blossom and rot के बारे में बात हो रही है. Bear. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. Bear से ही आप आइडेंटिफाई कर ले रहे हो क्या है. Blossom and rot किससे होता है? तो देखो our body is back. हमारे जो बॉडी का बैकबोन है, ठीक है, बोन से फॉर्म हुआ है. इफ बोन इज रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी, व्हाट विल हैपन? आवर बॉडी विल कोलैप्स. ठीक है. तो यहां पे क्या बोला जा रहा है? द स्टिक्स विल बी लुक रैग्ड एंड स्टिक टुगेदर. तो बोन्स जो किससे फॉर्म होता है हमारे बॉडी में? कैल्शियम. सिमिलरली इन लीव्स द स्ट्रक्चरल एलिमेंट इज फॉर्म्ड बाय द कैल्शियम. तो कैल्शियम अगर हटा लिया जाए तो जो प्लांट के लीव का मान लो बोन होता है that will collapse. तो stick leaves क्या कर जाएंगे? stick करने लगेंगे एक तरह से. तो that is the keyword here, sticking together of the leaves. Very important. And growing tips को याद रखिएगा of roots and leaves both turn brown and they die ultimately. And blossom and rot, तो tomato is the best example for that. यहाँ पे end में आप देखते हो कोई आप मार्केट में टोमेटो लेने भी जाते हो तो यहाँ पे देखना बहुत समय blackish रहता है. So that is a blossom and rot that is related to calcium. देखो मैंने बहुत सारी चीजों को यहाँ पे क्लब करके क्वेश्चन में दे दिया है. दे में आस्क यू 1 पॉइंट ओनली. ब्लॉसम एंड रॉट इन फ्रूट इज ड्यू टू व्हाट? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है. तो इस पूरे क्वेश्चन से दे कैन फॉर्म 3-4 क्वेश्चंस आल्सो. तो ओवरऑल अब होलिस्टिकली मैंने आपको समझाने के लिए सारे पॉइंट्स एक जगह क्लब कर दिए हैं, बट दे कैन स्प्लिट सम पार्ट्स फ्रॉम हियर आल्सो एंड आस्क सम क्वेश्चंस टू यू. ठीक है, ये भी आपको ध्यान में देखना है. तो एक एक चीज को इसलिए समझ के पढ़ना है. स्टिकिंग टुगेदर क्यों हो रहा है? ब्लॉसम एंड रॉट क्यों है? ठीक है. ग्रोइंग टिप्स ऑफ रूट एंड लीव्स ये कीवर्ड है. तो आपको याद रखना है, एक एक कीवर्ड को आपको याद रखना है. इसलिए मैंने सेपरेटली फिर यहाँ पर भी आपको दे दिया ताकि बाद में अगर आप देखोगे तो याद रखें. रैग्ड हो गया कीवर्ड. बेयर इज द कीवर्ड दैट इज ब्लॉसम एंड रॉट. टिप्स ऑफ रूट्स, ठीक है, एंड लीव्स टर्न ब्राउन एंड डाई. स्टिकिंग एंड रोलिंग मैंने समझाया क्यों स्टिक होगा. क्रिंकलिंग ऑफ कॉटन, देखिए बीन में क्रिंकलिंग इज ड्यू टू डिफरेंट. क्रिंकलिंग ऑफ कॉटन इज ड्यू टू कैल्शियम. And one more important term they use, cooking of leaves. Yellowish हो जाते हैं cooking of leaves. Directly question आता है इससे. Cooking of leaves is due to deficiency symptom of what? It is due to calcium. तो ये सारे जो keywords है that you must remember. Ragged, bare, sticking and rolling, crinkling and cooking of leaves. ये related है calcium से. ठीक है, चलो. Question number 5. Older leaves will be yellow in color with interveinal chlorosis. What is interveinal chlorosis? मतलब veins के बीच में chlorosis होगा. ठीक है, plants ऐसे ये veins है. यहाँ इस पोर्शन में
येलोइंग होगा, बट वेन्स विल रिमेन ग्रीन। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं इंटरवेनल, मतलब वेन के बीच में क्लोरोसिस। प्लांट ग्रोथ विल बी स्लो एंड सम प्लांट्स में इजिली इन्फेस्टेड। देखो इन्फेस्टेशन फिर से आ गया जो हमने पोटेशियम में देखा था, कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पोटेशियम भी ऑप्शन में, इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। ठीक है, तो व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर हियर? Mg, मोस्ट ऑफ द पीपल आर गोइंग फॉर Mg। ठीक है, चलो हम देखते हैं क्या है। सो मैग्नीशियम इज द राइट आंसर। इंटरवेनल क्लोरोसिस इन्फेस्टेशन, बट पोटेशियम में हमने इंटरवेनल क्लोरोसिस नहीं देखा था। When we are studying potassium, वहां हमने देखा था कि ठीक है इन्फेस्टेशन होता है उसमें भी, बट इंटरवेनल क्लोरोसिस वाज नॉट देयर। सो इंटरवेनल क्लोरोसिस प्लस इन्फेस्टेशन अगर आ जाए, देन राइट आंसर विल बी योर मैग्नीशियम, आपको याद रखना है। ठीक है, वेवी एंड ड्रूपी लीव, ये भी एक कीवर्ड है, दे समटाइम्स आस्क इन द क्वेश्चन डायरेक्टली। वेवी एंड ड्रूपी लीव्स इज ड्यू टू व्हाट? इट इज ड्यू टू मैग्नीशियम। ये कीवर्ड भी आपको याद रखना है साथ। ठीक है, ये इंटरवेनल क्लोरोसिस आप देख सकते हो, वेन्स रिमेन ग्रीन बट एरिया बिटवीन बोथ द वेन्स इज येलो। ठीक है, दिस इज इंटरवेनल क्लोरोसिस। क्वेश्चन नंबर 6, a general overall light green color of the entire plant. Keyword is overall light green color of the entire plant. This is the keyword. OLG is the keyword here. With older leaves being light green to yellow in color as the deficiency intensifies is due to deficiency of. OLG is the keyword. यहां से आपको पिक करना है एग्जामिनेशन में, ये क्वेश्चन आता है। सल्फर पोटेशियम, सल्फर पोटेशियम। सो इस क्वेश्चन का जब भी आपको OLG नजर आ जाए एग्जामिनेशन में, तो यू गो फॉर द आंसर, दैट विल बी योर सल्फर आंसर होगा OLG। ठीक है, तो ओवरऑल लाइट ग्रीन OLG जब भी आए तो यू गो फॉर द सल्फर। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इससे कि ऑयल सीड क्रॉप्स में स्पिंडल अपीयरेंस जो होता है किसकी कमी से होती है, तो आंसर यहाँ पे भी सल्फर होगा। स्पिंडल अपीयरेंस, ठीक है, स्पिंडल अपीयरेंस इन ऑयल सीड क्रॉप्स इज ड्यू टू सल्फर ओनली। One more important question frequently appear होता है, that is tea yellowing. Yellowing in tea is also due to sulfur. ठीक है, तो सल्फर से जितने भी रिलेटेड टर्म्स थे हमने देख लिया, OLG, स्पिंडल अपीयरेंस एंड टी येलोइंग, ऑल थ्री आर इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू सल्फर। तीनों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7, abnormal development of growing point with apical growing points eventually become stunted and dying. यहाँ पे growing points की बात हो रही है। Flower and fruit will abort. Some grain and fruit crops yield quality is significantly reduced. Good. Maximum Shivu, Subsmita, Harshita, they are going for boron. Kanika is saying boron. Madhuri boron. Very good, very good, very good. तो देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से जब भी क्वेश्चन आए तो कैल्शियम भी हो सकता है, because calcium is also present in the meristematic tissues, that is the tip of the growing regions. But यहाँ पे इसके साथ इन सब चीजों से आपको सप्लीमेंट किया जा रहा है। स्टंटेड एंड ड्राइंग, फ्रूट एंड फ्लावर के जब भी हम अबॉर्शन की बात करते हैं, अबॉर्ट हो जाता है ग्रोथ, तो उसको आप बोरोन से ही रिलेट करना, राइट? सो व्हाट आर द डिफरेंट कीवर्ड्स दैट यू मस्ट रिमेंबर फॉर बोरोन इज ग्रोइंग टिप इज एबनॉर्मल, रोलिंग होता है उनका, अबॉर्शन ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर, रिड्यूस्ड यील्ड, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, ब्रिटल, येलोइंग। ठीक है, यह देखो टिप ऑफ लीफ जो हम बात कर रहे थे, टिप ऑफ लीफ, यहाँ पे देखो आप सीरियल्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बोरोन। जब भी कमी होगी सीरियल में, वीट हो, राइस हो, उनके टिप्स में जो ये ऐसे ड्राई करके ये रोल कर जाएगा, दैट वी हैव सीन हियर, दैट इज रोलिंग। टिप की बात हो रही है, ग्रोइंग टिप की बात हो रही है, रोलिंग की बात हो रही है, तो ये बोरोन की कमी से होती है। कर्लिंग एंड क्रिंकलिंग इन बीन्स, अभी हमने क्रिंकलिंग ऑफ कॉटन देखा था, दैट वाज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, क्रिंकलिंग इन कॉटन वाज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, यस बालू, कैल्शियम, बट क्रिंकलिंग इन बीन इज ड्यू टू योर बोरोन। ठीक है, क्रिंकल करना, मुड़ जाना, क्रिंकल मींस टू रोल आउट, उसी को हम बोलते हैं क्रिंकलिंग एंड कर्लिंग। ठीक है, फ्रूट क्रैकिंग, फ्रूट क्रैकिंग भी बोरोन से रिलेटेड है, कैल्शियम से भी होता है बट बोरोन से भी रिलेटेड है फ्रूट क्रैकिंग। तो क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो आपसे कुछ सप्लीमेंटेड पॉइंट्स दे दिए जाएंगे आपको, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको बोरोन है या फिर कैल्शियम है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, क्रिंकलिंग इन बेन इज ड्यू टू बोरोन बट क्रिंकलिंग इन कॉटन इज ड्यू टू कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 8, यंगर लीव्स विल बी क्लोरोटिक एंड प्लांट्स विल इजीली विल्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विल्टिंग की बात हो रही है।
वीट प्लांट में बहुत इंपॉर्टेंट है इस न्यूट्रिएंट का, वीट प्लांट में बहुत इंपॉर्टेंट है। कनिका, प्रज्ञान, ऋचा, माधुरी, ऑल आर टेलिंग, अपराजिता, शिवु, क्लोरीन, वेरी गुड। लिख लो, इसको नोट कर लो, भूलना मत कभी भी। फॉर वीट प्लांट ए प्लांट डिजीज, जब भी इस न्यूट्रिएंट की कमी होगी वीट के कल्टीवेशन में, होल प्लॉट विल बी इन्फेस्टेड विद डिजीज। So this nutrient is your nothing, as all of you are saying, Lakshmi Narayan, chlorine, very important. Younger leaves will be chlorotic, is wilting term आ जाए, disease infestation in wheat आ जाए, तो you go for what? Chlorine. ठीक है? Don't forget this. Who has anybody has made a wrong attempt in this, तो इसको आप easily identify कर सकते हो। तो ये सारे keywords है, wilting and mottling, young leaf chlorosis, leaf spot and brown edges, वीट डिजीज में इन्फेस्टेशन बहुत ज्यादा होगा, एंड एक्सेसिव रूट ब्रांचिंग भी इसमें देखा जाता है। अगर क्लोरीन की कमी हो तो एक्सेसिव रूट ब्रांचिंग स्टार्ट्स। तो ये सारे कीवर्ड्स है जो आपको क्लोरीन से रिलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 9, प्लांट ग्रोथ विल बी स्लो एंड प्लांट्स स्टंटेड विद डिस्टॉर्शन, कीवर्ड इज डिस्टॉर्शन ऑफ द यंग लीव्स एंड डेथ ऑफ द ग्रोइंग पॉइंट इज ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ। इससे आइडेंटिफाई करो क्या है। 2-3 बार इस वीडियो को देख लोगे और सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कर लोगे, कोई भी गलती नहीं करोगे एग्जामिनेशन में। अभी हो सकता है मिसमैच हो जाए, बट एग्जामिनेशन में 2-3 बार यहाँ से देख के जाना है, क्वेश्चन यहीं से आने हैं, एंड यू विल नॉट मेक मिस्टेक। तो डिस्टॉर्शन से आप कॉपर लक्ष्मी नारायण कनिका, कॉपर, वेरी गुड। सो आई थिंक यू पीपल आर, नोट्स आपने अच्छे से पढ़ा, दैट्स वाई एकदम एग्जैक्ट आंसर दे रहे हो। नीरज, कॉपर, अपराजिता, वेरी गुड। डिस्टॉर्शन वर्ड से आप यहाँ पे कॉपर से रिलेट करना, ठीक है। तो हम देखते हैं, leaf tips twisted and distorted, very important, T plus D, twisted and distorted plus dieback, ये तो क्वेश्चन हिट क्वेश्चन है। dieback जो होता है that is mostly due to copper, कहीं कहीं दूसरे एलिमेंट से भी होता है, बोरोन से भी होता है, बट मोस्टली 99% it is due to copper only, dieback। sterile pollen, again important keyword, bluish green leaves, अगेन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपको याद रखना है रिलेटेड टू कॉपर। ब्लूइश ग्रीन लीव्स, स्टेराइल पोलन, डाइबैक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ट्विस्टेड एंड डिस्टॉर्टेड, अगेन इट इज ड्यू टू कॉपर, ठीक है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स है जिसको आपको जरूर से याद रखना है कॉपर से रिलेटेड, ठीक है। सो इज द थिंग्स थोड़ा से आसान लग रहे हैं, इस तरह से अगर हम पढ़ें और इस तरह से याद रखें तो एग्जामिनेशन में वी कैन मार्क द राइट। यस, चलो, ऑल ऑफ यू आर सेइंग यस, दैट मींस इट इज वर्किंग। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इंटरवेनल क्लोरोसिस विल अकर ऑन द इमर्जिंग एंड यंग लीव्स with eventual bleaching of the new growth. Keyword is bleaching. When severe, the plant may be light green in color is due to deficiency of. यहाँ में bleaching word से identify करना है। नीरज क्लोरीन, गौतम is saying iron, okay, very good. कनिका is saying iron, निशांत iron, good। चलो हम देखते हैं, iron is the right answer। bleaching जो keyword था हमने देखा। इंटरवेनल क्लोरोसिस अगेन इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एलिमेंट्स न्यूट्रिएंट्स हैं जिससे इंटरवेनल क्लोरोसिस होता है, उनमें से एक आयरन भी है, जिसमें कि वेन्स के बीच में जैसा बताया वेन्स ग्रीन, उनका कलर ग्रीन ही रहेगा। तो आयरन हो गया, मैंगनीज हो गया, इन सारों से इंटरवेनल क्लोरोसिस होता है। तो हेयर ब्लीचिंग से हमने पकड़ना था कि विच इज द न्यूट्रिएंट, इट विल बी द आयरन, ठीक है। तो इन्हीं कीवर्ड्स से आप एग्जामिनेशन में भी अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चंस को। Again, interveinal chlorosis. Interveinal chlorosis of young leaves while the leaves and the plant remain generally green. ठीक है? When severe, plants will be stunted due to deficiency of. Interveinal chlorosis again है, ठीक है। यहाँ पे फिर आपको क्या याद रखना है, while the leaves and the plant remain generally green in color. Amen. Very good, very good. Sonali, Akshay, Nishant, Apajita, Amen. Very good. Directly notes से है, ठीक है। तो MN से है, ये TNU वेबसाइट में भी आप डायरेक्ट देखो चार्ट बना के दिया हुआ है, राइट। सो MN इज द राइट आंसर, मैंगनीज। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स लीड्स टू इंटरवेनल क्लोरोसिस। तो इसको भी थोड़ा सा आपको, जैसा आई ऑलवेज से, कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन। तो देखते चलो कि इंटरवेनल क्लोरोसिस किससे होता है। अभी हमने देख लिया आयरन से भी होता है, अभी हमने देख लिया MN से भी होता है, तो आगे जाके और देखने के और किन किन से होता है।
तो वहां से भी ऑड वन आउट हो सकता है, फाइंड करने के लिए दे दिया जाए which of the following did not lead to, does not leads to intervenal chlorosis, right? चलो, तो मैग्नीज में आपको क्या क्या याद रखना है? पेल ग्रीन कलर, इंटरवेनल क्लोरोसिस ऑफ यंग लीव्स, ठीक है। ओल्ड लीव्स हम देख रहे थे, देखो यहाँ पे देखो, व्हेन वी आर स्टडीइंग नाइट्रोजन एंड ऑल, वहां पे ओल्डर लीव्स के लिए आ रहा था, बट यहाँ पे देखो यंग लीव्स के लिए आ रहा है। तो ये थोड़ा सा चीजों को आपको ध्यान रखनी है, दैट वी कंसेप्ट डिस्कस्ड इनिशियली, यंग लीव्स में है, ओल्ड लीव्स में है, कहाँ पे है, इससे आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो कुछ ऑप्शंस को, ठीक है। अगेन दिस वन, नेम डिजीज, पहला ब्लाइट ऑफ शुगर केन, इट इज ड्यू टू एमन, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, दे आस्क डायरेक्ट क्वेश्चन। खायरा डिजीज ऑफ पैडी, पहला ब्लाइट ऑफ शुगर केन, ठीक है, किससे होता है? पहला ब्लाइट ऑफ शुगर केन इज ड्यू टू मैंगनीज ओनली, आपको याद रखना है। मास स्पॉट ऑन पीस, लक्ष्मी नारायण सिंह, वेरी गुड, मास स्पॉट ऑन पीस इज ड्यू टू एमन, मास स्पॉट ऑन पीस, ये भी आप याद रखो, ये भी आता है, इज ड्यू टू मैंगनीज, गुड। क्वेश्चन नंबर 12, सिम्टम्स विल फ्रीक्वेंटली अपीयर सिमिलर टू नाइट्रोजन डिफिशियंसी, ठीक है, नाइट्रोजन की तरह ही ये सिम्टम्स आते हैं इसके। ओल्डर एंड मिडिल लीव्स बिकम क्लोरोटिक first, and in some instances leaves margin are rolled and growth and flower formation are restricted is due to deficiency of molybdenum, zinc, molybdenum and zinc के बीच में यहाँ पे कंफ्यूजन है। कीवर्ड्स को अगर हम फिर ध्यान से देखेंगे, molybdenum is related rolling and cupping of leaves, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखना कि जब जब molybdenum की कमी होगी, whenever there is a deficiency of molybdenum, नाइट्रेट एक्युमुलेशन इंक्रीजेस, नाइट्रेट एक्युमुलेशन काफी बढ़ जाता है, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी जनरली दे आस्क, नाइट्रेट एक्युमुलेशन इंक्रीजेस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट? इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मॉलिब्डेनम, स्टंटेड ग्रोथ एंड येलोइंग ऑफ लीफ लाइक नाइट्रोजन, जो डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो ये सारी चीजों से आपको मॉलिब्डेनम को, ठीक है, ध्यान में रखना है कि मॉलिब्डेनम है या फिर जिंक है, जैसा बहुत से लोग बोल रहे थे। जिंक में देखो, जब भी पूछा जाएगा ग्रोथ से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी होगा, जिंक में अभी आएगा क्वेश्चन जिंक से रिलेटेड। अपर लीव्स विल शो इंटरवेनल क्लोरोसिस, देखो अगेन आ गया, आयरन देख लिया हमने, एमन देख लिया, अब जेडन भी इंटरवेनल क्लोरोसिस है। विथ इवेंचुअल वाइटिंग इज द कीवर्ड ऑफ द अफेक्टेड लीव्स, लीव्स में बी स्मॉल एंड डिस्टॉर्टेड विद रोजेट इज अगेन ए कीवर्ड, रोजेट इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, डायरेक्ट क्वेश्चन दे कैन गिव, दिया भी उन्होंने कि रोजेट फॉर्मेशन इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट, रोजेट फॉर्मेशन इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट। देखो इसमें कोई मास्टर नोट्स की जरूरत नहीं है, दिस वीडियो ओनली विल मास्टर नोट्स, क्वेश्चन आएंगे इसी से आएंगे क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं आने वाले क्वेश्चन। सो दिस वीडियो ओनली विद द मास्टर नोट्स फॉर पीएनडी, नो नीड ऑफ कवरिंग एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो रोजेट फॉर्मेशन जो है वो किससे होता है और वाइटिंग किससे होता है? जिंक के फॉर्मेशन, जिंक के चलते होता है। So these are the keywords: rosette formation, whiting, chlorosis, reduced internode elongation, important, जो कि क्वेश्चन में नहीं है बट याद रखो, reduced internode elongation, dwarfness, very important, dwarfness जिंक के चलते, जिंक की कमी के चलते, bronzing and dusty spot, again important, जो कि नहीं था, additional I have added, bronzing and dusty spot, खायरा डिजीज ऑफ पैडी, जिंक के कमी से, वेरी 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 पॉपुलर क्वेश्चन खायरा, ठीक है। ये सारे टेक्निकल वर्ड्स, कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं, ब्रोंजिंग, डस्टी स्पॉट्स, ड्वार्फ लीव्स, रिड्यूस्ड इंटरनोडल लेंथ, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्लस योर रोजेट फॉर्मेशन जो क्वेश्चन में दिया गया था। तो ऑल जो कीवर्ड्स है आपको जरूर याद रखने हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है जिंक से रिलेटेड, ठीक है। चलो, white, Rishi is saying very good, white bud of maize, white bud of maize is due to zinc deficiency only, ये भी आप याद रख सकते हो, जैसा खायरा है उसी की तरह white bud of maize is due to zinc deficiency, ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, which of the following group of plant act as indicator for Mn and Cu, इन दोनों के डिफिशियंसी की वजह से हम किस प्लांट को लेते हैं स्टडी के लिए? मैंगनीज एंड कॉपर के डिफिशियंसी को स्टडी करने के लिए किस ग्रुप ऑफ प्लांट्स को यूज टू स्टडी? wheat, cereals? No, I think nobody is giving right answer for this question. Shivu is going right. Yes, first right answer given by Shivu. It is citrus.
सिट्रस प्लांट इज यूज्ड टू स्टडी मैंगनीज एंड कॉपर डेफिशिएंसी। ठीक है, तो इंडिकेटर कौन से हो जाएंगे? सिट्रस प्लांट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख लो थोड़ा सा आप, सारे तो देखो ओवरलैप कर रहे हैं, जो थोड़ा सा अलग है सिट्रस वाला अलग है, उसको आप याद रख सकते हो। प्लस ये याद रख सकते हो कॉलीफ्लावर एंड कैबेज वाला मॉलिबेडनम के चलते होता है, स्टडी के लिए यूज किया जाता है कॉलीफ्लावर एंड कैबेज। एंड सिट्रस वाला थोड़ा आप याद रख सकते हो। बाकी एक ओवरऑल एक व्यू देख लेना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर ओवरलैपिंग है, तो क्वेश्चन बनने के कम चांसेस है यहाँ से। चलो कॉपर 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 कॉपर, हाँ सिट्रस के लिए आई थिंक क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ठीक है, MnCu कॉपर MnCu, ठीक है। Mn के लिए भी सिट्रस है, नो इशू नो इशू। ठीक है, कॉपर के लिए वह कर सकते हैं सिट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी। फॉर फोलियर एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजन विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन, कितना परसेंटेज हम यूज करते हैं? दिस क्वेश्चन ऑलरेडी अपीयर्ड। व्हाट विल द राइट आंसर फॉर दिस? डी, दिस क्वेश्चन ऑलरेडी अपीयर्ड। नाइट्रोजन के फोलियर, क्योंकि नाइट्रोजन ही हम मोस्टली यूज करते हैं यूरिया को फोलियर एप्लीकेशन के लिए। ठीक, राइट। चलो, तो ये आंसर इसका 0.25% टू 5% आपको याद रखना है। अगर हम लीटर्स में की बात करें तो 3 to 5 kg, 3 to 5 kg आपको 400 लीटर में ऐड कर दें यूरिया फॉर फोलियर एप्लीकेशन, क्योंकि बहुत पॉपुलर है। हूएवर इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ही और शी माइट बी नोइंग दिस कि फोलियर एप्लीकेशन में हम नाइट्रोजन का बहुत यूज करते हैं, एक्सटेंसिव यूज होता है। इसके लिए कंसंट्रेशन कितना होता है, इसीलिए उन्होंने ये क्वेश्चन कभी ना कभी पूछा है, मुझे याद है एग्जैक्टली 0.25 to 0.5% ये यूज होता है नाइट्रोजन में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाकी भी कुछ कुछ के लिए है, नॉट इम्पॉर्टेंट सो मच, जैसे बोरैक्स के लिए, मैग्नीशियम के लिए। नाइट्रोजन का आप याद रखें, दैट इज इम्पॉर्टेंट। चलो next question, sorghum and sugarcane are indicator plant for which type of chlorosis? Sorghum and sugarcane are indicator plant for which type of chlorosis? आयरन, आयरन ही मोस्टली यही होता है, ऐसे गेस भी करते हैं तो राइट ही जाते हैं। आयरन, आयरन ही होता है, आयरन के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, आयरन क्लोरोसिस के लिए। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि आई हैव टेकन फॉर समवन, यस अगर आप ध्यान से पढ़ते होगे, इसलिए मैं बोलता हूँ TNU वेबसाइट को ध्यान से पढ़ो, ऑल क्वेश्चन वहीं आपको मिलेंगे, वहीं से लिए हुए सारे क्वेश्चंस। ठीक है, देयर इज नथिंग न्यू। चलो, which nutrient helps in translocation of sugar? Which nutrient helps in translocation of sugar? बोरोन, अगेन ये वेरी पॉपुलर क्वेश्चन है, ये पॉपुलर क्वेश्चन है बोरोन। अगर यहाँ पे आ जाए प्रमोट्स, ट्रांसलोकेशन की जगह अगर वर्ड किया जाए प्रमोट्स मूवमेंट ऑफ शुगर या फिर ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर, तो क्या हो जाएगा आंसर? प्रमोट्स, इन दैट केस पोटेशियम, राइट, इन दैट केस पोटेशियम। तो इसीलिए बोलता हूँ कीवर्ड्स पे हमेशा ध्यान दिया कीजिए। यहाँ पे डायरेक्टली बोल रहा है हेल्प्स इन ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर, हेल्प्स इन ट्रांसलोकेशन, बट अगर वर्ड आ जाए प्रमोट्स मूवमेंट ऑफ शुगर, तो इन दैट केस पोटेशियम विल बी द राइट आंसर। तो थोड़े थोड़े बारीक वर्ड्स पे आपको इस टॉपिक पे ध्यान देना है, इसीलिए मैं कीवर्ड्स पे इस पे इंसिस्ट करता हूँ। कीवर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट होता है इस टॉपिक के लिए पर्टिकुलरली। नेक्स्ट क्वेश्चन, hen and chicken disorder in berries is due to, grapes में जनरली पाया जाता है, grapes important crop। hen and chicken disorder in berries is due to बोरोन, बहुत ही पॉपुलर है, याद रखना है इसे। ठीक है, hen and chicken disorder is due to boron। rough skin of guava and citrus is due to which nutrient? rough skin of guava and citrus, rough skin of guava and citrus, again it is due to boron only, boron only, rough skin of guava and citrus। तो बोरोन से काफी ज्यादा ऐसे नेम डिजीज आपको मिलेंगे। ठीक है, बोरोन काफी इंपॉर्टेंट है।
Question number 20, button shading of coconut and whiptail of cauliflower. Again, important, whiptail of cauliflower. So numerous times this question has appeared in the different examination related to agriculture, plus button shading. B. Okay, very good. B for button, B for boron याद रखना. And whiptail तो बहुत ही important and famous question है, molybdenum. तो B and MO will be the right answer here. ठीक है, button shading and whiptail दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है. लिटिल लीफ इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, अभी मैंने बताया था आप लोगों को थोड़ी देर पहले, लिटिल लीफ को आप किससे करोगे, डाईबैक. चलो ठीक है, कॉपर जिंक, जिंक के लिए जा रहे हैं. और देखो दोनों से होता है, दोनों से होता है. डाईबैक एंड लिटिल लीफ कॉपर से भी आप रिलेट कर सकते हो, अगर सिर्फ लिटिल लीफ दे तो जिंक पे जाना. ठीक है, गुड. little leaf in citrus is due to copper, right? Copper in citrus पे अगर पूछा जाए स्पेसिफिकली तो you go for copper. चलो, जिंक, ठीक है अक्षर. तो दोनों से आप रिलेट कर लेना, डाईबैक देता है तो आप उस तरह से आपको यूज करना है पॉइंट्स को. चलो, ये भी अगेन, स्पंजी टिश्यू इन मैंगो इज प्राइमरली caused due to spongy tissue in mango. D, most of the people are getting D. तो हाई टेम्परेचर इज राइट. ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है मैंगो में और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है. इट इज ड्यू टू हाई टेम्परेचर. जब पोस्ट हार्वेस्ट आप हाई टेम्परेचर में स्टोर कर देते हो देन इट कॉजेस स्पंजी टिश्यू इन मैंगो. बेरी श्रिवल शैटरिंग एंड वाटर बेरी इज ड्यू टू, क्या है ये भी, क्या है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ही है. बेरी श्रिवल शैटरिंग एंड वाटर, ये भी सारे क्या, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है. नाउ कमिंग ऑन टू क्राउन चोक इन कोकोनट इज ड्यू टू, crown choke in coconut is due to name disease. These are called name disease. It's related separate, मैंने कार्ड भी दिए थे last year I think. Crown choke is due to अक्षय सिंह बोरोन, राइट. तो बोरोन ही है इसका भी आंसर. crown choke in coconut is due to boron. ठीक है, याद रखना. crown choke is due to boron. क्वेश्चन नंबर 25 देखो, यहाँ से हमने कवर कर लिया अपने क्वेश्चन नंबर 1 to 24. हमने डायरेक्ट जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से क्या होते हैं हमें वहां से आइडेंटिफिकेशन करना है, वो हमने अभी तक देखा. ठीक है, अब मूव कर रहे हैं हम यूजेज से आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करते हैं. यूजेज प्लस आइडेंटिफिकेशन की ओर मूव कर रहे हैं. ठीक है, ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट आया हुआ क्वेश्चन है. दिस क्वेश्चन ऑलरेडी अपीयर्ड इन द NABARD एग्जामिनेशन, राइट. बेसिक कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन एंड क्लोरोफिल, डायरेक्ट ये सेम टू सेम यही लाइन दे हैव गिवन इन द एग्जामिनेशन. आल्सो फीड्स माइक्रोऑर्गेनिज्म इन सॉइल, सेम यही लाइन था. दिस इज नाइट्रोजन. इससे आपको पकड़ना है यहाँ पे फीड्स माइक्रोऑर्गेनिज्म इन द सॉइल. ये मैंने सॉइल फर्टिलिटी वाला जो नोट्स दिया आपको वहां से क्वेश्चन है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन सेम टू सेम दिस क्वेश्चन हैज अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन. सो दिस फीड्स माइक्रोऑर्गेनिज्म, बेसिक कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आपको यहाँ पे याद रखना है. ठीक है, नाइट्रोजन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऑलरेडी दिस क्वेश्चन हैज अपीयर्ड. क्वेश्चन नंबर 26, प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रूट ग्रोथ and promotes the establishment of young plants, flowering fruits, ripening, photosynthesis, respiration. मतलब सारे कुछ में इसका रोल है. What is the right answer for this? Respiration जब भी देख लो उसी से पकड़ना चाहिए था आपको. Very good, all of you are giving right answer. माधुरी निशान, phosphorus. phosphorus से extensive role है in respiration of plants. ठीक है, photosynthesis में भी है. तो यहाँ पे phosphorus है. Keywords are very important here. Exact आपको ऐसे कैसे याद रखना है. 2 बार सॉल्व करोगे, 3 बार सॉल्व करोगे इस पीडीएफ को, you will easily be able to recall all the things in the examination. ठीक है, चलो. Energy currency, right? Phosphorus is also called energy currency. Next question, question number 28, plays a vital role in plant structure because it is a part of cell wall. यहीं से आपको पता चल जाएगा. Promotes the development of root system and ripening of fruit and seeds found in growing part of plants, apex and buds. Calcium, very good. Calcium is the right answer क्योंकि सेल वॉल की बात हो रही थी. स्ट्रक्चर, सेल वॉल ओनली फॉर्म्स द स्ट्रक्चर, तो यहाँ से आपको पकड़ना था. द राइट आंसर विल बी कैल्शियम. सारे बाकी चीजों को भी आपको देख लेना है. प्रमोट्स डेवलपमेंट ऑफ रूट सिस्टम, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया जा सकता है. विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट प्रमोट्स द डेवलपमेंट ऑफ रूट सिस्टम एंड राइपनिंग. बस इतना सेंटेंस भी दिया जा सकता है क्वेश्चन. तो सारे चीजों को ध्यान से पढ़ना when you will after this session again try to solve these questions. ठीक है, चलो, गुड. 19,
एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल का इंपॉर्टेंट पार्ट है, हेल्प्स फ्रूट राइपन एंड सीड जर्मिनेट, reinforces the cell walls and promotes the absorption of phosphorus, nitrogen and sulfur. Very good. या absorption से आपको पता लगाना था, phosphorus, nitrogen, sulfur में मैग्नीशियम जो है ये हेल्प करता है इनके absorption में. बाकी रेस्ट थोड़े से कैल्शियम से भी मैच हो रहे हैं, बट यहाँ से आपको ये थोड़ा सा इसको सेपरेट आउट कर रहा है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, मैग्नीशियम. चलो क्वेश्चन नंबर 29 हो गया. क्वेश्चन नंबर 30, माइक्रोन्यूट्रिएंट एसेंशियल टू क्लोरोफिल. वेरी इंपॉर्टेंट, ये कीवर्ड यहाँ पे एकदम याद रखना, डोंट फॉरगेट दिस. क्लोरोफिल प्रोडक्शन और भी है, क्लोरोफिल प्रोडक्शन के लिए आगे क्या बोल रहा है, ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सम एंजाइम्स एंड अमीनो एसिड्स. व्हाट विल द राइट आंसर फॉर दिस? आयरन. वेरी गुड, आयरन. आयरन इज द राइट आंसर फॉर दिस. क्लोरोफिल प्रोडक्शन के लिए प्लस कंट्रीब्यूट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सम एंजाइम्स एंड अमीनो एसिड. वेरी गुड. Question number 31, essential to overall plant health and tissue growth, promotes the formation of fruit and absorption of water. Boron. Very good. Direct नोट से ये क्वेश्चन, तो सारी चीजों को आपको याद रखना है. प्लांट हेल्थ, टिश्यू ग्रोथ, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. 1 2 3 ये तीनों दिख जाए तो डायरेक्ट बोरॉन मार्क करके आना एग्जामिनेशन में, ठीक है. बोरॉन विल बी द राइट आंसर. Question number 32, promotes seed germination and speeds plant maturity, plays important role in photosynthesis by contributing to chlorophyll production. ठीक है, यहाँ भी chlorophyll production है, essential for nitrogen assimilation and protein formation. Manganese. Very good. Superb level of preparation for most of you. आपने नोट्स सही से पढ़ा है, that represents. ठीक है, very good. मैंगनीज ही है इसका राइट आंसर, ठीक है. मैंगनीज आपको याद रखना है. Very good all of you. ऐसे ही पढ़ो, nobody can stop you from selection. Very good. Question number 33, essential for nitrogen assimilation by plant and nitrogen fixing bacteria. देखो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहा है. This means that it is need for production of nitrogen based proteins. नाइट्रोजन बेस्ड प्रोटीन्स के लिए कौन सा? वेरी गुड. मॉलिबेडनम. जब भी नाइट्रोजन बेस्ड प्रोटीन्स की बात आएगी एक ही है, स्टार्टिंग में भी हमने डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को. मॉलिबेडनम विल बी द राइट आंसर. वेरी गुड. ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, डिफिकल्ट नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि हर स्ट्रीम के स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं इसमें, राइट. जनरलिस्ट भी है, स्पेशलिस्ट भी है, तो प्रीलिम्स में इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, वेरी जनरल क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 34, which of the micronutrient stimulates photosynthesis? Keyword is stimulation of photosynthesis. Very good. All of you are giving right answers. Stimulation of photosynthesis दिख जाए, आंख बंद करके आपको क्लोरीन लगा के आना है. Stimulation of photosynthesis, आंख बंद करके क्लोरीन मार्क करके आना है, ठीक है. चलो, very good all of you. Question number 35, strengthens cell walls, energy transfer, drought resistance. Keyword is drought resistance. इसी से पकड़ लोगे क्या है? अनिका सिंह, सिलिकॉन. निशांत, सोनाली, सिलिकॉन. वेरी गुड. एनर्जी ट्रांसफर, ड्रॉट रेजिस्टेंस, इट इज सिलिकॉन ओनली. सिलिकॉन से ही रिलेटेड है. वेरी गुड ऑल ऑफ यू. क्वेश्चन नंबर 36, प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सिंथेसिस. जनरल क्वेश्चन है, इन प्रोटीन, एंजाइम्स एंड ग्रोथ हार्मोन्स. यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस विल गिव यू द राइट आंसर ओवर हियर. जिंक. वेरी गुड. जो ऑक्सीन होता है, ऑक्सीन के फॉर्मेशन में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट इज योर जिंक. जब भी ऑक्सीन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड आ जाए, यू गो फॉर द जिंक. जिंक इज द राइट आंसर, ठीक है. जिंक से ही ऑक्सीन फॉर्मेशन होता है, ये आपको याद रखना है. वन मोर क्वेश्चन आई विल आस्क यू. स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ये भी बहुत सब देखा गया क्वेश्चन. स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस किस न्यूट्रिएंट के कमी से होती है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर किसके हेल्प से होती है? सॉरी, न्यूट्रिएंट किस? मैंगनीज. इसको भी आप याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ड्यू टू मैंगनीज, ये आपको याद रखना है. स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज ड्यू टू मैंगनीज, इसके चलते होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ठीक है. चलो, these were the 36 questions, most important 36 question. 37th question,
nutrient health in photosynthesis, respiratory transport chain and lignin synthesis. These are keywords. ये दोनों keywords है इसमें. Respiratory transport chain अभी हमने डिस्कस किया respiratory transport chain में कौन सा हेल्प करता है. So what will be the right answer for this? जब भी आपको respiratory transport chain दिख जाए तो what will be the right answer for that question? Photosynthesis plus respiratory transport chain. Lignin synthesis, very important. Zinc, very good Neeraj, very good Nishant. Zinc, ये दोनों keywords है. Lignin synthesis जब भी आपको दिख जाए, transport chain जब भी आपको दिख जाए, you go for the zinc. ठीक है, zinc, very good. तो ये थे most 37 questions और मैं कुछ और 10 questions I will add in the PPP. You can go directly solve in the PPP all these questions. तो आपको एक idea हो जाएगा and revision हो जाएगा for all these areas. So it will help you out for this. ठीक है, तो I don't think कि इससे ज्यादा आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे. This is more than enough. इन्हीं को आप रिवाइज करो बार बार. सारे कीवर्ड्स को जिसने हमने स्ट्रेस किया पूरे सेशन में, उन कीवर्ड्स आपको याद रखना है एग्जामिनेशन में एंड इट विल ओनली हेल्प यू टू फेच मार्क्स. बाकी कुछ इधर उधर याद रखने में क्या होगा, कंफ्यूजन होगा, बट कीवर्ड्स होगा तो आप उससे एलिमिनेट करके याद रख सकते हैं. और शुरू में जो हमने कंसेप्ट देख लिया था स्टार्टिंग में, व्हाट वी कंसेप्ट हैव रेड कि माइक्रो क्या है, ठीक है, मोबाइल कौन सा है, इमोबाइल कौन सा है, ऑल दिस थिंग्स विल हेल्प यू इन क्लियरिंग और गेटिंग दी गुड मार्क्स और नेगेटिव्स कम होंगे. सबसे इंपॉर्टेंट ये है. तो आई होप दिस सेशन वाज बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू एंड यू विल गेट मार्क्स इफ सम क्वेश्चन अपीयर फ्रॉम दिस, राइट. हाँ, ये मॉडल प्रोजेक्ट्स में मैं ले जाऊंगा. ठीक है, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट. ये सेशन रखूंगा, ऐसे ही एमसीक्यू सेशन ऑन द नाबार्ड मॉडल प्रोजेक्ट्स में रखूंगा. ठीक है, चलो, एनीथिंग यू वांट टू आस्क अपार्ट फ्रॉम दिस? पीपी पे डाल दूंगा रजत, वहां पे सॉल्व कर लेना. ठीक है.